नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर एक तार्किक विषय पर चर्चा के लिए और श्री कपिल मिश्र जी द्वारा उस पर उद्बोधन के लिए उपस्थित हुए और विषय है भारतीय संस्कृति के समक्ष चुनौतियां और उसके समाधान हेतु राष्ट्र जागरण में शिक्षित युवाओं की भूमिका। यह काफी महत्वपूर्ण है, शिक्षित युवाओं की भूमिका। तो मैं आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ एक संस्कृत श्लोक के माध्यम से करना चाहूंगा और वह मेरे मित्र श्री सिद्धार्थ कालाहस्ती जी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। श्री सिद्धार्थ कालाहस्ती। सर्वेभ्यो नमस्कारः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ गङ्गणपतये नमः। The one Sanskrit verse from Bhagavad Gita which describes our group very well is this one, is as follows. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। नमस्कार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री सुदीन को करता हूँ कि वह हमारी संस्था का परिचय देते हुए और हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री कपिल मिश्र जी का भी परिचय देकर इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। Namaste everyone. Namaste Kapil ji. IITB for Bharat team welcomes you to this discussion on the topic of role of educated youth in national renaissance. IITB for Bharat is an unofficial group of IIT Bombay students, alumni and staff members who are seekers of the importance and relevance of civilizational values of Bharat. We are relatively a new group. The starting point of this group was a show of strength during the CAA support in the form of a Tiranga rally. We have organized 2 more talks before this. One was from professor at IIT BHU, and another one was from a professor at IIM Bangalore. Now, why this topic? Last few decades, we have seen a shrinking space for the Indic thought and worldview. This was coupled with an absence of a coherent response to the encroachment on the Indic space on various fronts. However, on the brighter side, we also seem to be on the cusp of what can be called as an awakening. In this regard, the role of educated youth is important in order to channelize the national aspirations and energies in the right directions. Today we have with us Shri Kapil Mishra to talk to us on the topic. A graduate from Delhi School of Social Work, Shri Kapil Mishra became active in politics at a young age while working alongside his mother in Delhi. He was the member of Legislative Assembly of Delhi and a cabinet minister for the Ministry of Water Resources. Shri Kapil Mishra is a well-known social and anti-corruption activist. He is one of the most powerful social media influencers around us. Kapil Mishra ji is a founding member of the India Against Corruption movement and is a co-founder of the youth action group called Youth for Justice. His recent initiative, named as Hindu Ecosystem, is aimed at uniting nationalist forces across the country through both online and ground level action. With this brief introduction, I would like to invite Kapil ji to take over. Pleasure to have you with us, Kapil ji. थैंक यू सुदीन जी, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आप सबको नमन है इस शुरुआत के लिए। आईआईटी बी फॉर भारत, ये थॉट, ये संकल्प, जहां आप बैठे हैं वहां देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ करने का
विचार भी मन में मात्र आना, ये भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार बहुत ही व्यक्ति केंद्रित अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, स्वयं से आशाएं, परिवार की आशाएं, वो सब इतनी ज्यादा व्यक्ति केंद्रित और परिवार केंद्रित हो जाती हैं कि वहां पे धर्म, राष्ट्र, समाज, देश, इस बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत नमन करता हूं आप सभी को जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया है, इस विचार के साथ बनाया है, इस प्रकार का काम किया, और ऐसे ऐसे समय पर आपने शुरू किया जब सच में देश के बड़े शिक्षा प्रतिष्ठानों में राष्ट्रवादी विचारों, धर्म, सत्य, इनकी बात करने वालों को एक काले रंग से पोतने का फैशन जैसा इस देश में शुरू हो गया है। उस समय ये साहस करना, जहां पर आप बैठे हो वहां पर, और क्योंकि जिन लोगों के विचार के खिलाफ आपने खड़े होने का साहस दिखाया है, वो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो वैचारिक लड़ाई को व्यक्तिगत तक भी ले जाते हैं और करियर तक भी ले जाते हैं छात्रों के। उसके बावजूद इस प्रकार का संकल्प लेना, इस प्रकार की शुरुआत करना, ये एक अद्भुत पराक्रम है, शौर्य है, और मैं नमन करता हूं आप सभी को इस शुरुआत को करने के लिए। इस विषय को चुनने के लिए भी बहुत आभार, क्योंकि बहुत आवश्यक विषय है, संस्कृति के समक्ष चुनौतियां और राष्ट्र जागरण में शिक्षित युवाओं की भूमिका। ये विषय आपने जो चुना है, इसमें बार बार लगातार चर्चा होनी जरूरी है, संवाद होना जरूरी है, इस संबंध में बात होनी जरूरी है। संस्कृति क्या है हमारी, उसके समक्ष चुनौतियां क्या है, राष्ट्र जागरण किस प्रकार के स्वरूप में हम लोग देखना चाहते हैं, और जो युवा है, शिक्षित युवा खास तौर पे, उनकी क्या भूमिका होगी और उनके सामने चुनौतियां क्या है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। और इस विषय को चुनने के लिए भी आपका आभार। मैं ज्यादातर हिंदी में बोलूंगा, बीच बीच में कुछ इंग्लिश में बोलूंगा। जिन लोगों को भाषा के कारण कुछ असुविधा होगी उनसे पहले ही क्षमा चाहता हूं। हिंदी क्योंकि स्वतः निकलती है, इसीलिए उसमें ज्यादा सरलता से, ज्यादा कंफर्ट के साथ में अपनी बात बोल पाऊंगा। मेरा ये मानना है कि जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति के समक्ष चुनौतियों की, जब इस चीज की हम बात करते हैं, तो ये चुनौतियां कई प्रकार की हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत का धर्म, भारत का समाज अपने सामने महसूस कर रहा है, वो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे अस्तित्व की, हमारी आइडेंटिटी की, हमारी पहचान की। ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त हम सबके सामने खड़ी है। खास तौर पे वो युवा जो इस समाज को चलाने वाले बनेंगे, गति देने वाले बनेंगे, उनके सामने ये एक और बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। भारतीय जो सभ्यता है और संस्कृति है, पिछले लगभग 400-500 साल में या 700-800 साल में दुनिया का शायद ही कोई और सभ्यता या समाज इस प्रकार से लगातार संघर्षरत रहा होगा, लगातार अपने संसाधनों को, अपनी जमीन को, अपने ज्ञान को, अपनी परंपरा को, अपने विज्ञान को छीनते हुए देखा होगा। शायद एक हमारा ही समाज है जिसने इतना संघर्ष पिछले कुछ 100 सालों में देखा है, इतना कुछ खोया है, और उसके बावजूद भी अभी है वो बीज मिट्टी में, अभी है वो पराक्रम, अभी है वो आशा, अभी है कि ये दोबारा खड़ा हो सकता है, क्योंकि और किसी ने इस प्रकार का संघर्ष देखा तो बचा ही नहीं है, और या फिर इस प्रकार का संघर्ष अभी देखा ही नहीं है अन्य सभ्यताओं ने, अन्य समाजों ने। तो एक बहुत ही ज्यादा युद्ध के दौर से हम पिछले कुछ 100 सालों से गुजर रहे हैं, और ये इस युद्ध में हमने अपने भूमि के टुकड़े को खोया है। जिस राष्ट्र की आज हम बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र अभी कुछ 100 साल पहले तक, क्या 70 साल पहले तक भी इस स्वरूप में नहीं था जिस स्वरूप में आज दिखाई देता है। अगर उसकी जियोग्राफिक, भौगोलिक बाउंड्री के बारे में बात करें तो हमने बहुत बड़ी अपनी भूमि खोया हुआ समाज है, अपनी जमीन खोया हुआ समाज है, अपने राष्ट्र का एक हिस्सा खोया हुआ समाज, वो उस प्रकार का राष्ट्र है हम लोग। और केवल हमने भूमि ही खोई हो ऐसा नहीं है, हमने अपनी ज्ञान परंपरा की बहुत सारी विरासत को खोया है, अपने विज्ञान को खोया है, अपने कॉन्टेक्स्ट को खो दिया हम लोगों ने। भारतीय राष्ट्र, भारतीय सभ्यता का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, किस दृष्टि से हम दुनिया को देखेंगे, अपने देश को देखेंगे, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखेंगे, उसको खो चुके हैं हम लोग। और खास तौर पे अगर पिछले लगभग 100-150 साल में अगर हम देखें, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है उसको बदला गया, और फिर तथाकथित आजादी के बाद उसी को और ज्यादा जोर शोर से हमारे ऊपर थोपा गया, उसमें तो हमने बहुत कुछ खो दिया जो शायद पिछले 1000 साल के संघर्ष में भी नहीं खोया था। अपनी पहचान को ही आज जिन परिवारों में हम लोग हैं या हमारे आसपास के हमारे साथी हैं जो इस देश को चलाने वाले परिवार हैं, उनके ही पिछले 3 या 4 पीढ़ियों के लोगों ने अपना स्व का भाव ही खो दिया है।
अपने 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 की पहचान भी खो दी है और अपनी जो बची कुची पहचान है उसमें स्वाभिमान का भाव खो दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि हमारे सामने खड़ी है, जिसमें हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है, उस पे हमें गर्व क्या होना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो दुनिया से हमको अलग करती हैं। वो कहीं ना कहीं वो पहचान ही हमारी प्रश्न चिन्ह के ऊपर लग गई है। कई युवा, आप लोग अपने साथियों को ही देखते होंगे, स्वयं को हीनता से देखना, खुद के प्रति और खुद के समाज के प्रति इंफीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स, अपने धर्म, अपनी धार्मिक परंपरा, अपने त्योहार, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने रिचुअल्स, अपने घर परिवार के लोग, उनकी मान्यताएं, उन्हीं को हीन भावना से देखना, उनको सामने से दिखाने में भी हीन समझना अपने आप को, और ये भी जानना साथ में, केवल ये अपने मन का भाव नहीं है कि हमें मन में हीन लग रहा है, लेकिन असली में हमें ये भी पता है कि अगर हम उसको स्वीकार कर लेंगे और उसको आगे बढ़ के अपनी आइडेंटिटी को दिखाएंगे तो कहीं जो लोग आगे निर्णय लेने वाले हैं देश का, समाज का, करियर का, उन लोगों की नजरों में भी हमें हीन ही समझा जाएगा, उनकी नजरों में भी हमें कहीं इंफीरियर या बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ समझा जाएगा। तो ये एक इस प्रकार की बहुत बड़ी चुनौती लगभग सभी युवाओं के समक्ष है, खास तौर पे अब जो पीढ़ी है उसके समक्ष तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब सुदिन बोल रहे थे कि एक अवेकनिंग भी साथ में शुरू हुई है, तो जब इतने सालों से दबाया जाता है और उसके साथ साथ उठना भी शुरू होता है तो फिर संघर्ष का माहौल बनता है। और ये जो संघर्ष और ये युद्ध का जो माहौल बन रहा है, वैचारिक युद्ध का माहौल, प्रोपेगेंडा से युद्ध का माहौल, कम्युनिकेशन माध्यम से युद्ध का माहौल, और जमीन पर भी जो एक युद्ध जैसा माहौल है कि अगर ये लोग जगना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, खुद पर गर्व करना चाहते हैं, खुद की पहचान को दोबारा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रिसर्च करके अपने सत्य को सामने लाना चाहते हैं, तथ्यों को सामने लाना चाहते हैं, तो इनको कुचलो। इस प्रकार का एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया है और ये संघर्ष अभी और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब आप जैसे युवा सत्य को सामने लाने की और कोशिश करने लगे हैं। शायद आज से 20 साल पहले कुछ भी झूठ पढ़ाया जा रहा था तो उसे स्वीकार किया जा रहा था, अब जब उसको अस्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो संघर्ष भी बढ़ना है, हमले भी बढ़ने हैं, कुचलने की कोशिश भी और ज्यादा बढ़नी है। तो एक भयानक इस प्रकार की चुनौती मुझे जरूर लगता है कि हम लोगों के सामने है। और राष्ट्र का स्वरूप, हम राष्ट्र कहते किसको हैं, खासकर जब हम भारत जैसी सभ्यता के एक हिस्सा है, जब हमारे पीछे हजारों साल की संस्कृति है, सभ्यता है, इतिहास है, शौर्य का इतिहास है, वीरता का इतिहास है, हमारे आर्किटेक्ट का इतिहास है, हमारे ज्ञान का, विज्ञान का बहुत बड़ा इतिहास है, हमारे अध्यात्म का बहुत बड़ा इतिहास है, तो फिर हम राष्ट्र किसको कहते हैं? क्या हम राष्ट्र को इसी को राष्ट्र कह देंगे जिस प्रकार की कुछ भौगोलिक सीमाएं इस वक्त वर्तमान में हमारे ऊपर थोपी हुई गई हैं, या हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी ज्ञान परंपरा उसको राष्ट्र के रूप में देखेंगे, उसको उसका प्रचार प्रसार कैसे करना है? तो हम राष्ट्र किसको कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा जब भारतीय सभ्यता के राष्ट्र के रूप में होती है, तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि हमारा एक राष्ट्र विचार के तौर पर भी है, एक राष्ट्र भौगोलिक तौर पर भी है, एक विचार के तौर पर भी है, और दोनों प्रकार का राष्ट्र ने दमन को भी देखा है, संघर्ष को भी देखा है, पराभव को भी देखा है, और दोनों प्रकार का जो भारतीय राष्ट्र है वो अपने दोबारा से उठने की तैयारी में है। और वैचारिक राष्ट्र तो कहीं ज्यादा तेजी से प्रखरता के साथ उठने की तैयारी में है जितना कि भौगोलिक राष्ट्र की अगर हम बात करें, क्योंकि भौगोलिक राष्ट्र जिस प्रकार के सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम और जंजीरों में बंधा है, शायद भौगोलिक राष्ट्र के उठने में समय लगेगा, लेकिन वैचारिक भारतीय राष्ट्र इसके तो प्रखरता के साथ उठना शुरू हो चुका है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। जिस प्रकार के तेजस्वी युवा आप लोग यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार पूरे देश में और पूरी दुनिया भर में भारतीय राष्ट्र, भारतीय राष्ट्रीय परंपराओं के पालन करने वाले लोग जागृत होकर तेज के साथ, प्रखरता के साथ अपनी बात को रखने की शुरुआत कर चुके हैं। इसीलिए जब मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने आया तो मुझे लगा कि इस बारे में जरूर बात करें कि एक तो हमारी चुनौती अस्तित्व की है, हमारी चुनौती पहचान की है, हमारी चुनौती अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखने की है, हमारी चुनौती स्वयं पे गर्व का अनुभव करना, हीनता की भावना से छुटकारा, हीनता की भावना से आजादी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस वक्त हमने स्वयं पर विश्वास कर लिया, जब विवेकानंद जी ने बोला कि सबसे बड़ी संपत्ति राष्ट्र की युवाएं, और राष्ट्र की युवाओं के लिए भी उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास, स्वयं के लक्ष्यों पर विश्वास, स्वयं के जिस पुरातन इतिहास के परंपरा के एक उत्तराधिकारी के तौर पर हम खड़े हुए हैं उसके ऊपर विश्वास। ये विश्वास जिस दिन आ गया उस दिन बाकी सब हम लोगों के पास पहले से है। लेकिन ये हीनता की भावना हमको एक जहरीले एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, जहरीले प्रोपेगेंडा के द्वारा हमारे मन में रोपी गई है, और पिछले 100-150 साल में रोपी गई है, और पिछले 70 साल में तो बिल्कुल
इस प्रकार से थोप दिया गया हमारे ऊपर कि कोई अगर स्वतंत्र रूप से सोचने की भी कोशिश करे तो उसको अपने ऊपर हीन भावना ही नजर आए, अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। केवल पराजयों का इतिहास जिस प्रकार से हमारे ऊपर थोपा गया, आक्रमणकारी हमलावर उनको जिस प्रकार से महान बता के हमारे ऊपर थोपा गया, और ये सबसे ज्यादा किस पर थोपा गया, ये शिक्षित युवाओं पर ही थोपा गया, क्योंकि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था सबसे ज्यादा जहर ही उसको दिया गया, क्योंकि पॉइजन करने का मीडियम ही शिक्षा को बना दिया गया। इस देश में केवल शायद साइंस एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जहां पर पॉइजन नहीं किया जा सका, क्योंकि अल्टीमेटली साइंस इज अबाउट ट्रुथ, लॉजिक, एक्सपेरिमेंट, तो उसको आप कितना पॉइजन कर पाओगे। लेकिन साइंस के अलावा इस देश का पूरा एजुकेशन मॉडल और देश की सारी यूनिवर्सिटी एक तरह से इस देश के खिलाफ काम करने वाले अड्डों के तौर पर बन गई, जहां बैठे हुए चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो वहां के शिक्षक हो, उनके मन में, उनके पाठ्यक्रम में, उनके पढ़ाने के तरीकों में, उसको चलाने वाले जो अधिकारी गण थे या उसके ऊपर बैठे हुए जो मंत्री गण थे, जो नीति बनाने वाले लोग थे, उन सबका केवल एक ही उद्देश्य था, इस देश की संस्कृति के प्रति, इस देश के धर्म के प्रति, इस देश की परंपराओं के प्रति हीन भावना पैदा करो, हमला बलों को, आक्रमणकारियों को, बदमाशों को, लुटेरों को, बलात्कारियों को, उनको महान बना के दिखाओ, और हम लोगों को केवल मन में ये बात बैठा दो कि ये तो बटे हुए लोग हैं, ये तो टूटे हुए लोग हैं, इनकी धर्म परंपरा इनकी कमजोरी ही है, इनके पास विज्ञान की कोई समझ नहीं है, ये बैकवर्ड पिछड़े किस्म के लोग हैं, इनके धार्मिक रिचुअल्स, इनके प्रतीकों का, इनके त्योहारों का, उसका मजाक, उसको रिडिक्यूल करना, उसको किसी प्रकार से भी हीन भावना अपने मन में ही आ जाए, इस प्रकार का एक षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ किया गया है, बड़े पैमाने पर किया गया है। और ये सबसे ज्यादा इसका शिकार हमारे देश के शिक्षित युवा और युवतियां हुए हैं। तो इसीलिए राष्ट्र जागरण की हम जब बात करते हैं और शिक्षित युवाओं की हम जब बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी और चीज से पहले आगे देश के लिए क्या करेंगे, धर्म के लिए क्या कर पाएंगे, समाज के लिए क्या कर पाएंगे, उससे पहले स्वयं को इस शिक्षा के द्वारा दिए हुए जहर से मुक्त करना, स्वतंत्र करना, यह शिक्षित युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्वयं को, इससे बड़ी इस वक्त कोई और जिम्मेदारी नहीं है। स्वयं को और अपने साथियों को और अपने परिवार को शिक्षा के द्वारा जो जहर, जो हीन भावना, जो विष, जो झूठ, जो कपोल कल्पना हमारे खिलाफ हमारे ही दिमागों में घोल दी गई है, उसकी जंजीरों को तोड़कर स्वयं को खड़ा करना प्रखरता के साथ, ये मुझे लगता है कि हर शिक्षित युवा के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसी स्थिति है। आपको जो पढ़ाने वाले होंगे वो आपको वही जहर पढ़ाएंगे, जिस आधार पे आपका करियर बनना है, मार्क्स आने हैं, वो आपको उसी जहर के आधार पे नंबर देंगे। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बैठे हैं तो उसी जहर के आधार पे अगर आप आंसर देंगे तो ही आप इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले सिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे। इस प्रकार की चारों तरफ से घिरी हुई बेड़ियों के बाद स्वयं को मुक्त करना, ये सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है शिक्षित युवाओं के सामने है। और आप जैसे कुछ प्रखर युवा उस बेड़ियों को तोड़ पा रहे हैं, संघर्ष कर पा रहे हैं, लेकिन अगर अपने आसपास के कुछ निस्तेज अन्य युवाओं को आप देखें तो वो हीन भावना ऐसी है कि उनके चेहरे ही लटक गए हैं, अपने बारे में बात करते हुए, अपने धर्म के बारे में बात करते हुए, अपनी संस्कृति के बारे में। और इस प्रकार की हीन भावना से ग्रसित लोग किसी भी राष्ट्र का जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वयं भी जागरण नहीं हुआ। सोते हुए लोग किसी दूसरे को क्या ही जगाएंगे, देश को जगाना तो बहुत ही दूर की बात है। तो इस प्रकार का एक चुनौती मुझे लगता है कि हम सभी के सामने, और इसमें हमारे हथियार क्या है, इसमें हमारी ताकत क्या है, इसमें हमारी शक्ति क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति इसमें है सत्य की शक्ति, ट्रुथ। क्योंकि अगर सत्य की बात होगी, किसी भी पैमाने पे उसको तोल लिया जाए, आप सब लोग साइंस के छात्र हैं, आप इस देश के हाई साइंस को पढ़ने वाले लोग हैं, हाई टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग हैं। सत्य की जब जब बात होगी और सत्य के तराजू पर जब भी किसी सभ्यता को तोला जाएगा, तो एक हमारी ही संस्कृति और हमारी ही सभ्यता है, वो हर बार उसमें पास होके निकलेगी। हजारों साल पहले भी अगर किसी ऋषि मुनि ने कहीं दूर अंतरिक्ष में समय अलग होता है और पृथ्वी में समय अलग होता है, इसकी बात कहीं लिखी होगी, तो आप आज हजारों मॉडर्न टूल्स यूज करने के बाद भी जब आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको वो टाइम डिफरेंस कैसे स्पेस में अलग होता है, यहाँ अलग होता है, वो प्रूव होता हुआ दिखेगा। धरती और सूरज के बारे में, तारों की स्थिति के बारे में, हमारे शरीर विज्ञान के बारे में, हमारे खान पान की आदतों के बारे में, जितना ज्यादा विज्ञान और सत्य सामने आएगा, उतना ज्यादा भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता वो वहां पर सत्य साबित होते हुए, सही साबित होते हुए नजर आएगी। तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा सत्य है।
हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा लॉजिक है। जब भी कहीं लॉजिक से बात होगी तब सामने वाला बिफर जाएगा, तब सामने वो पगला जाएंगे, क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं है, उनके पास केवल शक्ति है कुचलने की, उनके पास केवल अंध शक्ति है। जो इस देश की संस्कृति और सभ्यताओं के खिलाफ पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं वो अंध शक्ति के आधार पे काम कर रहे हैं। वो शायद केवल फेथ पे जो है उसको मान लो और आंख मूंद के मान लो, और जो ना माने उसको मार दो, इस प्रकार की सोच के खिलाफ। और हमारे यहाँ फेथ नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे यहाँ अनुभव है। जो सत्य लगता है उसको स्वीकार करो, एक्सपेरिमेंट करो, सवाल करो, जानो। तो शिक्षित युवाओं के सामने एक ये चुनौती इस बात को जानने की और समझने की है कि आपके जो विरोध कर रहे हैं वो अंधे विरोधी हैं, और आपके पास सत्य की शक्ति है, आपके पास ज्ञान की शक्ति है, आपके पास सवाल करने की शक्ति है, लॉजिक की शक्ति है। और शायद भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में इतने साल में अगर हमारे पास कुछ एक ताकत बची हुई है तो वो यही ताकत बची हुई है कि जब भी सत्य के तराजू पे सभ्यताओं को, संस्कृतियों को और समाजों को तोला जाएगा, तब हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज ये उस सत्य के तराजू पे हमेशा सही साबित होगा। और इसीलिए शिक्षित युवाओं को केवल इतना समझने मात्र की ये इस प्रकार का ज्ञान हमारे मन में आ जाए कि हाँ, इस प्रकार की समझ एक बार आ जाए कि हमें सत्य हमारी शक्ति है, सत्य की शक्ति के आधार पे हम लोग किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सत्य की शक्ति के आधार पे हम अपना भी, स्वयं का भी जागरण कर सकते हैं और राष्ट्र का भी जागरण कर सकते हैं। यहाँ एक चीज मेरे को जरूर मेरे मन में बार बार आती है, क्योंकि मैं इस देश की राजनीति, युवा आंदोलन, युवा संगठनों के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे ग्रास रूट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है, काम कर रहा हूँ। देश में अलग अलग युवा जहां जहां काम कर रहे हैं, लगभग सभी के संपर्क में रहता हूँ। खासतौर पर जो धर्म के हित में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति और सभ्यता के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके लगातार सतत संपर्क में रहता हूँ। मुझे ये लगता है कि हर सभ्यता, संस्कृति, समाज, धर्म, उसके इतिहास में कुछ 100 सालों में, कुछ 1000 सालों में एक ऐसा समय आता है जब वो खड़ा होता है, जब उसका उद्भव होता है, जब राइज होता है उस सभ्यता का, जब वो अपनी जंजीरों को तोड़ के प्रखरता के साथ दोबारा उदय होता है, जब सारी हीन भावनाओं को झटक के फेंक दिया जाता है, जब गुलामी की कोई भी पहचान उसको हटा दिया जाता है, स्व का भाव उत्पन्न होता है। वो प्रखर भारतीय संस्कृति, वो उदय होने का समय, उद्भव होने का समय, मुझे ये बार बार लगता है कि ये समय अब आ चुका है। जिस प्रकार आप जैसे युवा पूरे देश में जगह जगह धर्म के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी किताबों में इतिहास झूठा पढ़ाया गया उसको खोद कर निकाल के सत्य सामने लाने का, बिना किसी अध्यापक के, बिना किसी गाइड के, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी ट्रेनिंग के, उसके बावजूद जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस देश को, इस समाज को, भारतीय संस्कृति को दोबारा से खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, पिछले कई 100 सालों के बाद भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज उस मोड़ पे सामने आया है, बड़े परिवर्तन का, जिसको कहीं क्रांति भी आप कह सकते हैं, वैचारिक क्रांति, उस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं। हिंदू इकोसिस्टम में जो बात करी कि हमने एक टीम बनाई थी, हिंदू इकोसिस्टम में भी मेरा अनुभव ये रहा। इसके पहले हम लोगों ने देश के राइटर्स का एक ग्रुप बनाया, ब्लॉगर्स का एक ग्रुप बनाया। आप जैसे जो ग्रुप देश में काम कर रहे हैं, जो हाई एजुकेशन में IIT जैसी जगह बैठे हुए युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, ग्रास रूट में, बस्तियों में कई लोग युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। सब जगह एक ऐसा माहौल, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा तेज कि हमें स्वयं के खिलाफ हुए अत्याचारों, स्वयं के खिलाफ हुए प्रोपेगेंडा, झूठ, इसके खिलाफ अब बोलना है। और अचानक ये समय आया है। अगर आप देखें तो बड़े बड़े पद्म विभूषण प्राप्त लोग, बड़े बड़े इतिहासकार बने बैठे लोग, उनकी धज्जियां आप जैसे युवा उड़ा रहे हैं, और तथ्यों के आधार पर उड़ा रहे हैं, सत्य के आधार पर उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया की ताकत का उपयोग करके उड़ा रहे हैं। आज कोई हमें हमारा झूठा इतिहास थोप नहीं सकता। किताबों में लिखा होगा झूठा इतिहास, लेकिन उन्हीं इतिहासकारों को तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर धज्जियां उड़ाने वाले युवा इस देश में जगह जगह बैठे हैं। गांव में बैठे हुए युवा युवतियां प्रखरता के साथ अपने धर्म की, अपने समाज की बात करने लगे हैं। तो ये प्रखरता और ये तेज, इसका उदय होना शुरू हुआ है। ये अपने चरम पर कब पहुंचेगा? अभी 10-20 सालों में पहुंचेगा कि 100-150 सालों में पहुंचेगा? क्योंकि समाज धीरे धीरे चलते हैं। समाज में बड़ी बड़ी वैचारिक क्रांतियां भी 100-50 सालों में होती हैं, दशकों में होती हैं। तो वो उस स्थिति में कब तक पहुंचेगा, ये तो कोई नहीं उसकी भविष्यवाणी कर सकता। लेकिन यहां से केवल उठेगा ही, यहां से तो अब केवल उदय का ही समय है।
सूरज तो उगना शुरू हो गया है, अभी ये अपने पूरे वैभव पे, पूरे धूप में, पूरे सिर पे चढ़ती हुई चमचमाती हुई धूप के साथ भारतीय संस्कृति का सूरज अभी होगा या कुछ सालों के बाद होगा, ये समय का प्रभाव, समय का अंतर हो सकता है, लेकिन सूरज उदय होते होते अस्त नहीं होने वाला। तो समाज एक दिशा में चल चुका है, प्रखरता के साथ चल चुका है, तेज के साथ चल चुका है, सत्य की शक्ति के साथ चल चुका है। राष्ट्र का जागरण, भारतीय वैचारिक राष्ट्र का जागरण, भारतीय भौगोलिक राष्ट्र का कोई जागरण अभी नहीं हो रहा है। भारतीय भौगोलिक राष्ट्र तो अभी बेड़ियों को तोड़ रहा है, जैसे 370 को हटाया तो एक बेड़ी को तोड़ा है। भगवान श्री राम का मंदिर दोबारा बनना शुरू हुआ तो एक बेड़ी को तोड़ा है। अभी इतिहास की किताबों को बदलने की मांग शुरू हो रही है तो एक बेड़ी को तोड़ रहे हैं। अभी जो भारत के बाहर जो भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको वापस अपने देश का नागरिक बनाने की जो बात चल रही है, जिसमें आप लोगों ने भी सीएए में प्रखरता के साथ वैचारिक बातों को रखा, तो बेड़ी को तोड़ रहा है। तो भारतीय भौगोलिक राष्ट्र तो अभी केवल अपनी बेड़ियों को तोड़ रहा है, उसके बाद खड़ा होगा, स्वतंत्रता का अनुभव करेगा, अंगड़ाई लेगा, खड़ा होगा, प्रखरता के साथ वो राष्ट्र भी खड़ा होगा। लेकिन भारतीय वैचारिक राष्ट्र तो प्रखरता के साथ खड़ा होना शुरू हो चुका है। देश में, दुनिया में जहां भी लोग हैं जो भारतीय वैचारिक परंपरा का सम्मान करते हैं, अब गर्व के साथ अपनी संस्कृति को सामने रख रहे हैं, गर्व के साथ और स्वाभिमान के साथ। अगर कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है तो तर्कों पे उसको उत्तर दे रहे हैं। हो सकता है अभी हमारी कोई सैन्य पावर, हमारी मिलिट्री पावर, हमारी शारीरिक पावर, हमारी वो पावर उतनी ज्यादा अभी नहीं हो एक राष्ट्र के तौर पे, लेकिन हमारी वैचारिक पावर तो इतनी है कि हम अब आंखों में आंख डाल के अपनी बात कर रहे हैं। अब हम कोई हमारे धर्म के या समाज के खिलाफ बोले और हम आंख झुका के चुपचाप चले जाएं, वो समय अब खत्म हो गया। अब आंखों में आंख डाल के हम सवाल जवाब करते हैं, तथ्यों के आधार पे हम सवाल जवाब करते हैं। दुनिया में, देश में कहीं भी कोई भी कितना भी बड़ा नाम बनकर बैठा हुआ हो मठाधीश, हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, तो हम खुलकर उसके सामने खड़े हैं। कितने ही लोग रिसर्च कर रहे हैं नए नए, हमारे पुराने आर्किटेक्ट के ऊपर, हमारी ज्ञान परंपराओं के ऊपर, कितने लोग उसको सामने लाने का काम कर रहे हैं, प्रखरता के साथ उन बातों को रखने का काम कर रहे हैं। राजनीति हो, समाज हो, अर्थ क्षेत्र हो, हमने अपनी बेड़ियों को तोड़ना और खड़ा होना, ये दोनों शुरू कर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि मोटा मोटी अगर अपनी बात को मैं समअप करने की कोशिश करूं तो चुनौती अस्तित्व और पहचान की है। जो शत्रु हैं वो पिछले कई 100 सालों से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारत का धर्म, इसको खत्म कर दिया जाए और इसके प्रति एक हीन भावना पूरी तरह से मन में भर जाए, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही फेस्ड मैनर में हमारे धर्म को खत्म करने के लिए, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए काम किए गए हैं। तथाकथित आजादी के बाद भी इस देश में जो सिस्टम रहा, उसने उसी प्रकार के हमले को जारी रखा, बल्कि और भी ज्यादा तेजी से कुचलने का काम किया। इस देश की शिक्षा व्यवस्थाएं, इस देश की यूनिवर्सिटीज, खासतौर पर हाई एजुकेशन के, नॉन साइंस के ज्यादातर इंस्टीट्यूट भारत को, भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को खत्म करने के लिए, उसमें जहर बोने के लिए, उसके प्रति हीन भावना भरने के लिए इसीलिए काम करते रहे हैं पिछले 70 सालों से और उससे पहले से भी। और उसके बावजूद भारत में एक ऐसा युवा वर्ग तैयार हो रहा है जिसने ना केवल स्वयं को जाना है, ना केवल स्वयं के जागरण की जिम्मेदारी ली है, परंतु अपने राष्ट्र के जागरण की भी जिम्मेदारी ली है। और मुझे लगता है कि ऐसे सभी युवाओं के लिए केवल एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक कोई लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य पे फिर कोई भी आपदा आए, कोई भी विपदा आए, कोई भी रुकावट आए, कितनी भी मुश्किल आए, चाहे तो आप ये सोचें कि मेरे को इतिहास में भारतीय संस्कृति पे होने वाले सभी हमलों के खिलाफ सत्य सामने लाना है, तो फिर अपना जीवन उसमें लगा दीजिए। जो भी आपके साथ की प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसको जारी रखते हुए जीवन का एक हिस्सा इसी में लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत का जो विज्ञान था, पारंपरिक विज्ञान था, उसको मेरे को दुनिया के सामने लेके आना है, तो फिर अपने जीवन का एक हिस्सा लक्ष्य बना के कई सालों तक उसके लिए लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत में जो संवाद है, जो बातचीत है, उसमें जो हीन भावना है, जो विचार भारतीय संस्कृति के प्रति है, उसके लिए प्रखरता से बोलने का काम मेरे को करना है। सोशल मीडिया में बोलना है, जमीन में जाके बोलना है, दुनिया में बात करना है, कहीं भी होगा तो अपनी बात को तथ्यों के आधार पर रखने का जिम्मा लेना है, तो फिर उसके लिए जीवन का एक हिस्सा लगा दीजिए। क्योंकि हम सौभाग्यशाली है कि हम एक ऐसे धर्म और समाज में पैदा हुए हैं जहां बहुत कुछ है और उसके उत्तराधिकारी के तौर पे अब हर कोई युवा जो आज यहाँ बैठा हुआ है या इसको सुन रहा है, आप उत्तराधिकारी हैं हजारों लाखों वर्षों की संस्कृति और सभ्यता के, ज्ञान परंपरा के। तो जब आप इतनी बड़ी चीज के उत्तराधिकारी होते हैं तो फिर जिम्मेदारी होती है, वो केवल व्यक्तिगत नहीं होती, वो केवल पारिवारिक और सामाजिक नहीं होती, वो जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति भी होती है।
उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए कोई ना कोई एक लक्ष्य अपने जीवन का निर्णय लेते हुए, डिसाइड करते हुए कि ये फील्ड, इस फील्ड में भारतीय संस्कृति को प्रखरता के साथ सामने रखने की जिम्मेदारी मैं या लेता हूं या लेती हूं, ये संकल्प करके मुझे लगता है सभी, आप सभी लोगों को और आप जैसे सभी अन्य शिक्षित युवाओं को, जिसमें स्वयं का जागरण, स्वयं के बंधनों को भी तोड़ना और उसके बाद समाज और राष्ट्र का जागरण, ये मुझे लगता है सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस लक्ष्य के लिए जब भी काम करेंगे तब कहीं ना कहीं खुद को जरूर मिटाना पड़ेगा, खुद को जरूर भुलाना पड़ेगा। एक शेर अंत में जरूर कहना चाहता हूं कि जब बीज मिट्टी में जाके मिल जाता है, गायब हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है, तभी वो पौधा या पेड़ बन के खड़ा होता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो वो दाना एक बार तो मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा। इस देश सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र के जागरण के लिए कई 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 सैकड़ों हजारों युवाओं को स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं की पहचान को एक कहीं निर्धारित करके लक्ष्य बना के पूरी तरह से उस लक्ष्य में खुद को रमा के, भूल के सब कुछ, उस स्वयं के अस्तित्व को मिटा के राष्ट्र और समाज के अस्तित्व के लिए लग जाएं। और ऐसे हजारों लाखों युवा लगातार लगे भी हुए हैं, इसीलिए संस्कृति और सभ्यता आज बची भी हुई है। तो यही मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर करने का समय, और मुझे विश्वास है आप जैसा समूह, आप जैसे ग्रुप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय संस्कृति और समाज को प्रखरता के साथ पूरे विश्व में पुनः स्थापित होते हुए अपने स्वाभिमान, अपनी पहचान के साथ माँ भारती को हम लोग सब दोबारा देखेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद कपिल जी, आपने बहुत ही उत्पूर्ण वाणी में अपनी इस पूरे विषय को हम सभी के समक्ष रखा है। निश्चित रूप से हम में से बहुत लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी उठ रहे हैं। आपकी चर्चा के माध्यम से आपने कई विषयों को, कई मुद्दों को उठाया है। तो मैं चाहूंगा कि जिन जिन के मन में प्रश्न हैं, वह प्रश्न चैट बॉक्स में अगर चाहे तो लिख सकते हैं, या अगर वो हैंड रेस करना चाहते हैं, ये खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो हमारे जूम के थ्रू जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, वो इस तरह से कर सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब में हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, वहां से हम उनके क्वेश्चंस को कपिल जी तक पहुंचाएंगे और उसके संभावित उत्तर के लिए उनसे निवेदन करेंगे। तो अभी मेरे पास विवेक प्रजापति जी हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। मैं चाहूंगा कि वो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन रखें और अपना प्रश्न कपिल जी से पूछें। नमस्ते कपिल जी, आपको देखकर काफी खुशी महसूस हो रही है और आपसे बात करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अभी देखा जाए तो जिसकी आप खुद बात कर रहे थे कि किताबों के जरिए, शिक्षा के जरिए समाज में जहर भरा जा रहा है, और अभी ये तो काफी बड़े लेवल पे हो रहा है। अभी और भी देखें, जैसे कि ये जो लड़ाई करते हैं तो इनके लड़ाई में कोई मॉरल और इथिक्स नाम की चीज नहीं होती है। जैसे अभी इन्होंने बोल दिया कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर बता दो, और आप ही की बात कर लें, आपने बात किया था कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमें हमारा रास्ता खाली करवाओ, और आपको दंगाई बता दिया, और अभी भी आपको लोग दंगाई बोलते हैं। तो ऐसा हम भी कुछ करते हैं तो हमें भी लोग लेबल लगा देते हैं। तो इन लोगों से कैसे निपटे हैं, इन लोगों को क्या जवाब दिया जाए कि ताकि हम अपने काम पे आगे बढ़े और इनके भटकावे में ना। धन्यवाद। नमस्कार विवेक भाई, मेरा सौभाग्य कि आपसे बात हो रही है। बहुत बहुत आभार अपने सवाल को रखने के लिए। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि इनके द्वारा जो आरोप लगा जाए उसको मेडल की तरह अपनी छाती पे चिपकाना चाहिए। तो अगर ये बोलते हैं कि कपिल मिश्रा दंगाई है, तो इधर वो मेडल है मेरा, क्योंकि किसी से तो डरना चाहिए इनको। इनके मन में ये तो आना चाहिए कि कोई तो खड़ा होगा और सत्य को बोलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका कोई मॉरल नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। आज अगर ये बेचारे बने होंगे तो केवल ये मौका देखने के लिए कि जब हम शांत हो जाएं तब ये कुचल दें, और पिछले कई सैकड़ों सालों से यही हमारे साथ किया गया है। तो युद्ध के मैदान में कहते हैं ना, ओखली में सिर दिया तो मूसलों की क्या ही परवाह करनी है। तो मूसल तो पड़ेंगे, और मूसल इसलिए भी ज्यादा पड़ेंगे क्योंकि अभी शक्ति उनके हाथों में है, ताकत उनके हाथों में। जब मैंने हिंदू इकोसिस्टम की बात की और हम लोगों ने हिंदू इकोसिस्टम के लिए काम करना शुरू किया, तो पहला विचार यही आया कि हम किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं।
और एक इकोसिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम के टीम वर्क से लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई साजिश, जिस प्रकार से कुंभ के खिलाफ बोला गया, वो किसी एक ने नहीं बोला, वो कितने प्लान तरीके से साजिश करके पूरे भारत के कोरोना को या उसकी आपदा को हिंदुओं के धर्म के एक त्योहार के ऊपर डाल दिया जाए। और कितने प्लान तरीके से बनाया गया। अगर टूल किट को आप देखें तो साथ में उसी में ईद को किसी अलग तरीके से बोलना है, कुंभ को किसी अलग तरीके से बोलना है। मुंबई में हो जाई हजारों मृत्यु को इग्नोर कर दो, दिल्ली में होने वाली मृत्यु को इग्नोर कर दो, और हरिद्वार में कहीं कोई साधु नहा रहा है तो उसको प्रतीक बना दो पूरे देश में होने वाली आपदाओं का। कितना भयानक प्रोपेगेंडा है और कितनी भयानक तैयारी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज हमको ये समझनी चाहिए और ये मान लेनी चाहिए कि बिना तैयारी तो कुछ नहीं होगा। वैचारिक तैयारी, संवाद की तैयारी, कम्युनिकेशन की तैयारी, समझ, और जो भी आप करें उसके आगे के 4 स्टेप क्या होंगे ये जरूर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई पत्थर फेंके जाते हैं, कोई भी इल्जाम आपके ऊपर लगाया जाता है, वो आपका मेडल है, उस शौर्य पदक के तौर पे उसका स्वीकार करना चाहिए। मैंने इन सभी आरोपों को आतंकी, दंगाई, ये वो शौर्य पदकों के तौर पे सीने पे धारण किया हुआ है। थैंक यू सो मच सर, काफी जवाब सुन के अच्छा लगा और आगे मैं कार्यरत रहूंगा जिस काम को भी मैं कर रहा हूं, और आशा करता हूं आपसे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू। अब अगले प्रश्न के लिए मैं अनुराग मिश्र जी, जिन्होंने हाथ उठाया है, उनसे चाहूंगा कि वो अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करके अपना प्रश्न कपिल जी से पूछें। हेलो, मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ बोलिए बोलिए लोग। हाँ, तो सर मेरा ये सवाल है, जैसे भी आपने बोला कि पूरी लड़ाई जो है इतिहास लिखने की है, करंट इतिहास की है, पुरानी इतिहास की है, जिसको हम लोग हिस्टोरियन और डिस्टोरियन भी बोलते हैं। तो सर ये यूनिफॉर्मिटी लाए कैसे, कि मतलब इतिहास सही क्या है? क्योंकि मैंने जो देखा है सर, ये जो हिंदू इकोसिस्टम की बात हो रही है, हम ही में एकता नहीं है सर, हम ही में एकता नहीं है। हम में क्या होता है सर कि हम लोग शुरुआत करते हैं जीरो से, फिर हमें प्रेज मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, फिर हम राह से भटक जाते हैं। जैसे एक लेखक थे सर जिन्होंने स्टार्टिंग में राम पे किताबें लिखी, राम से पहले उन्होंने किताबें लिखी, फिर राम पे किताबें लिखी। अभी उनकी एक किताब आई थी बैटल ऑफ सुहेलदेव वाली। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो किस राजा के बारे में बताना था और उस किताब में कहाँ तक पहुंच गए। तो सर मेरा सवाल है कि ये जो हिस्ट्री है इसको कैसे, अगर हमारे हिसाब से गलत है तो हम इसको सही कैसे करें? क्योंकि बोलना आसान है सर, किसी को समझाना कठिन है। और ये जितने आप ये देखेंगे एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स, ये बचपन से आता है सर, ये स्कूल की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से आता है सर। क्योंकि कुछ सालों बाद ही लेट हो जाता है, जब लोग अपनी जॉब, एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिजी हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल उनको बताना कि आपने जो पढ़ा वो गलत है, जो बताया गया वो गलत है। तो इसको प्राइमरी एजुकेशन में लाना पड़ेगा। लेकिन सर ये लाना भी तो बहुत कठिन है, क्योंकि हर एक पन्ने के एक पैराग्राफ चेंज पे पूरा बवाल होता है। बिल्कुल आपने सही कहा है अनुराग जी, और ये कठिन है, इसीलिए तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कठिन क्या, दुष्कर है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये सिस्टम्स ने बनाया है हमारे खिलाफ। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते करते ही रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए, या जो सामने सिस्टम, इकोसिस्टम खड़े हैं उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, और इस कारण फिर उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। जिनके अंदर शुरू में साहस भी होता है, वो बाद में उनको होते होते हार मान के या थक के या लालच में किसी प्रकार से उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ये होता है। लेकिन इसको कैसे करें? तो इसको करने का कोई भी प्राइमरी एजुकेशन हुई हो, कोई भी सेकेंडरी एजुकेशन हुई हो, लेकिन अनुराग मिश्रा तो आज यहाँ बैठे हैं ना अपने बारे में जानते हुए, वो एजुकेशन तो आपको नहीं करप्ट कर पाई, वो झूठ तो आपके अंदर नहीं बस पाया, जितना भी झूठा इतिहास उन्होंने पढ़ाया हो। ऐसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अभी विवेक प्रजापति जी थे, सिद्धार्थ जी थे, विभोर हैं, जय हैं, अनूप हैं, गोविंद हैं, संदीप हैं, सुधीन है, जितने भी लोग यहाँ आज इस कॉन्फ्रेंस में, कितनी भी प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कितने भी जहर हमारे दिमाग में घोला गया हो, पर हम तो निकल आए उस चक्रव्यूह से बाहर, हमको समझ में आ गया। तो ये जो प्रखर तेज, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता ने हमारे अंदर दिया हुआ है, ये बीज हमारे अंदर है। इसी को पहचान करना है, इसी में अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि इस दिशा में मुझे काम करना है। जैसे मैंने एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया कि लिखने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले लोगों को
हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले युवाओं को जोड़ने के लिए एक छोटी टीम बनाएंगे, हिंदू इकोसिस्टम बनाने के लिए लग गए। ऐसे किसी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो इतिहास को ठीक करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, वो हमारा इतिहास है। आप बोले कि सही इतिहास क्या है? इतिहास सही या गलत नहीं होता। इतिहास होता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट से किसी घटना का विवरण कर रहे हैं। सही या गलत उसके तथ्य हो सकते हैं। हमें तो तथ्य ही गलत बताए गए। हारने वाले को विजेता बता दिया गया, लुटेरों को महान बता दिया गया, जिन्होंने 2 दिन इस देश में शासन नहीं किया गया उनको इस देश का शासक बता दिया गया। हमें तो तथ्य ही गलत बताए गए हैं। तो तथ्यों को सही निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अकबर ने कितना राज किया, बाबर ने कितना राज किया, औरंगजेब ने कितना राज किया, कहाँ पे उसका राज चलता था, कहाँ नहीं चलता था, कौन से लोग उसके साथ करते, कितने लोगों को उन्होंने मारा, कितने मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, ये तो तथ्य हैं। इन तथ्यों को सामने लाना तो बहुत ही आसान है। तथ्यों के सामने लाने के बाद भी किसी घटना को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। हम तो अभी अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं। उन्होंने वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि चर्च और पादरी समाज पे अत्याचार करते थे, महिलाओं पे अत्याचार करते थे, लूटते थे, सबसे ज्यादा अमीर चर्च होते थे, सबसे ज्यादा लुटेरे चर्च होते थे, चर्च की मर्जी पे वहां का समाज चलता था। तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का इतिहास लिखना शुरू कर दिया। तो हमारे को कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू तो चेंज करना ही होगा, हमें कॉन्टेक्स्ट तो चेंज करना ही होगा। इस देश का इतिहास, इस देश का वर्तमान और इस देश का भविष्य हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए। ये जिम्मेदारी तो हमें लेनी होगी और प्रखरता के साथ लेनी होगी और साहस के साथ लेनी होगी। और ये सही या गलत के तराजू के ऊपर उठ के ये बात करनी है। सही या गलत तथ्य होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में होती है। वो कॉन्टेक्स्ट ही हम लोगों ने खो दिया है। और वही कॉन्टेक्स्ट की बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने दिमागों में रखनी होगी कि जब हमें कुछ बताया जा रहा है, चाहे आज की घटना हो, वर्तमान में होती कोई घटना हो, या भविष्य में होने वाली घटनाएं हो, या जैसे सीए को विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे तो ये सवाल उठेगा, जी भारत क्यों कर रहा है, भारत क्यों नागरिकता दे रहा है, इतने धर्म के लोगों को दी, इतने धर्म के लोगों को क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि विदाउट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो उस पर आप सवाल उठा लोगे, उसके खिलाफ आप आतंक फैला दोगे, दंगे कर दोगे, सड़कें। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट डालोगे कि पिछले 70 सालों में उन देशों में किन लोगों की हत्याएं हुई, किन लोगों को मारा गया, कैसे पहले धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, फिर वहां बचे लोगों को खत्म कर दिया गया, कैसे डेमोग्राफिक चेंज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुआ और भारत में क्या डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको वो बात समझ में आएगी। तो मुझे ये लगता है अनुराग भाई कि इतिहास तथ्यों के आधार पर क्या है वो एक अलग चीज है और वो तो बहुत ही आसान है आप जैसे लोगों के लिए निकालना। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के आधार पे कैसे चीजों को पढ़ना, समझना और एक्सप्लेन करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार की किताबें तो बदलती रही हैं, इतिहास में बदली गई हैं, तो भविष्य में भी बदली जाएंगी। और जिस प्रकार से ये देश एक सही रास्ते पे चल रहा है, छूटे ऐतिहासिक किताबें ज्यादा बिकने वाली नहीं है, लेकिन वो उन इतिहास, क्योंकि ऐतिहासिक किताबें हम पे असर नहीं डाल पाई, तो बदली हुई किताबें भी दूसरों पे असर नहीं डाल पाएंगी अगर हमने कॉन्टेक्स्ट, पॉइंट ऑफ व्यू अपना प्रखरता के साथ, तेज के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ नहीं बदला। जब उनके झूठा इतिहास हम पे फर्क नहीं डाल पाया, तो हो सकता है हमारा सच्चा इतिहास भी आने वाली भविष्य पे फर्क ना डाल पाए, अगर हमने उसको एक्सप्लेन करने का, समझने का तरीका वो भारतीय तरीका नहीं अपनाया तो। जी धन्यवाद। तो अब अगला प्रश्न सिद्धार्थ सुराना जी के द्वारा है और वो भी अपने ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नमस्कार कपिल जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि यूजी में जब कोई भी नया छात्र आता है, ग्रेजुएशन के लिए जब भी कोई बच्चा आता है, तो उसके दिल में ऐसा कुछ यानी होता नहीं है कि वो एक विंग या दूसरे विंग की तरफ से हो। पर आज हमने देखा है कि जो उन्होंने फैला के रखी है चीजें, या जो विक्टिम पार्ट वो हमेशा प्ले करते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल आता है कि बच्चे हर बार उस तरफ ज्यादा झुकाव दे देते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही बताया जाता है कि ये विक्टिम हमारे पे इतना अत्याचार हुआ है इतने सालों से। इस चीज को कैसे लड़े आगे? ये सिद्धार्थ भाई, ये कम्युनिकेशन की लड़ाई है, ये लड़ाई है प्रोपेगेंडा की, ये लड़ाई है किस प्रकार से चीजों को प्रस्तुत करना है। ये इमोशन की लड़ाई नहीं है, ये केवल भावनाओं की या सत्य की लड़ाई नहीं है। उन लोगों ने सफेद झूठ बेचा है, मारा भी और चिल्लाए भी, और अगर मरने वाला रोया तो उसको अपराधी भी बना दिया। जैसे कि मैं दोबारा से सीएए आंदोलन का ही एग्जांपल देता हूं। सीएए आंदोलन एक भयानक, हिंसक, देश विरोधी, धर्म विरोधी आंदोलन रहा। पहले दिन से उसमें रेलवे स्टेशन जलाए गए, पुलिस वालों को मारा गया,
सड़कों को बंद किया गया, देश के खिलाफ नारे लगाए गए, देश को टुकड़े करने की बात की गई, यहाँ तक कि हिंदू तेरी कब्र खुदेगी ये तक नारे लगे। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या? प्रोपेगेंडा की एक अहिंसक आंदोलन हो रहा है, प्रोपेगेंडा की कोई शांतिपूर्ण गतिविधि हो रही है। तो ये प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा को जब तक आपका कम्युनिकेशन, आपका संवाद, आपकी बातें, आपका सच तरीके के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, प्लान तरीके के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक उनका झूठ बिकेगा। जब तक आप अपने सत्य को बाजार में लेके नहीं निकलोगे, तब तक मार्केट में झूठ बिकना ही है। सत्य कितना भी शक्तिशाली हो, घर में बैठा हुआ तो नहीं किसी को समझ में आएगा। हमें इस संवाद की, कम्युनिकेशन की बात को रखने की, इस चीज को और टीम के साथ, प्लान के साथ, सुनियोजित तरीके से इसको हमने समझना शुरू कर दिया है। हम लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन आपकी बात सच है। इस देश की जो युवा हैं, खासतौर पे जो तुरंत कॉलेज गए युवा हैं, उनको उनकी भाषा में, उनके रोल मॉडल्स के द्वारा, उस तरीके से, जिस तरीके को वो समझते हैं, वो हम लोगों को जरूर करना होगा। ऐसे कई ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई में ही, आपके मुंबई में और पुणे में कुछ टीमें हैं, सनातन करके। उनको अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम में, उनके वीडियोस अगर आप देखेंगे किस प्रकार का वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो भारत का इतिहास रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में बनाकर सच्चा इतिहास, झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ किस प्रकार की बातें हैं, उसमें ऐसे कई छोटे छोटे इनिशिएटिव देश भर में किए जा रहे हैं, आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 70 सालों में केवल हमारी एजुकेशन हमसे नहीं छीनी गई, हमारा आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मूवी, ये सब हमसे छीन लिया गया, और इस सब का उपयोग हमारे धर्म के खिलाफ किया गया। जितने भी कम्युनिकेशन के और प्रोपेगेंडा के टूल होते हैं, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे लिटरेचर हो, इस सब को भारत के धर्म और संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने के लिए जहर के तौर पे इन सब का इस्तेमाल किया गया है पिछले 70 सालों में। तो आपको ये सारे टूल दोबारा क्लेम करने पड़ेंगे, दोबारा इन पे हम लोगों को, आप लोगों को मिलकर कब्जा करना पड़ेगा। हमारी फिल्में हमारे धर्म के खिलाफ नहीं बन सकती, ये निर्णय लेके, क्योंकि चलती तो हमारे ही पैसों से है। हमारा लिटरेचर हमारे धर्म की खिलाफ उसका मजाक बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। ये संवाद के टूल हैं जिनके माध्यम से युवाओं को, बच्चों को प्रोपेगेंडा के माध्यम से देश और धर्म के खिलाफ खड़ा किया गया है पिछले 70 सालों में। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी रही है कि हमारे हाथ से संवाद के वो सभी माध्यमों को छीनकर हमारे ही धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, और हमें उन सबको वापस रिक्लेम करना ही होगा। धन्यवाद जी। अब मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके और अपना प्रश्न पूछे कभी। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते विभोर जी। का जो यूथ फॉर जस्टिस का जो प्रकल्प आपने चलाया है, उसके विषय में भी एक प्रश्न है। वैसे प्रश्न बहुत सारे हैं, का भाष्य सुन के बहुत प्रश्न आए मन में, पर जैसे कि इसमें यूथ फॉर जस्टिस है, फिर आप एक क्रांति की बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशन, फिर सत्य की जो बात हो रही है, ये सब जो शब्द हैं, ये सब उन लोगों ने अपने पक्ष में पहले से कर लिए हैं। मतलब जो रिवोल्यूशन, जब कोई बात करते हैं बंदूक के दम पे आजादी और इस टाइप की जो बातें होती है, क्रांति की, जस्टिस का हमारे आईआईटी में ग्रुप उन्होंने चला रखा है। फिर तो ये सारी चीजें जब हो रही थी हमारे सामने, मैं मतलब हमेशा अपनी गलती ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तो ये सब जब हो गया तो हमसे ये चूक कहाँ पे हो गई? तो भारत कभी विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध देश हुआ करता था, तो हमसे चूक कहाँ पे हुई कि ये सब आज हमको, ये लोग हमारे सर पर बैठकर और जो नाच रहे हैं, ये सब कब हो गया और क्यों हुआ? आपको ऐसा कैसे लगता है, मतलब कि क्यों हुआ गया ये? बहुत अच्छा सवाल है आपका विभोर भाई, और ये बात बिल्कुल सही है कि शब्दों को तो वापस लेना ही होगा। जो शब्द उन्होंने छीन के अपने बना लिए हैं, और वही शब्द युवाओं के मन को सबसे पहले छूते हैं, चाहे वो क्रांति हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे रिवॉल्यूशन हो, परिवर्तन हो, बदलाव हो, यही शब्दों को हमसे ही छीन लिया गया और हमारे ही खिलाफ इनका उपयोग करने, तो धर्म के खिलाफ बोलने को क्रांति बना दिया गया, देश के खिलाफ बोलने को परिवर्तन बना दिया गया, इस देश के टुकड़े करने को आजादी बना दिया गया। और या तो हम ये कर सकते थे कि हम इसको चुपचाप होते हुए देखते रहें,
जैसा कि पिछले कई सालों में हुआ है, और या फिर हम कम से कम एक प्रक्रिया शुरू करें इसको वापस लेने की, और ये बताएं कि आज़ादी क्या होती है, ये बताएं कि जस्टिस क्या होता है, ये बताएं कि न्याय क्या होता है, ये बताएं कि क्रांति क्या होती है, और तेज युवा का तेज का मतलब क्या होता है। निस्तेज युवा, झड़े हुए युवा, वो आजादी के नारे लगा रहे हैं। तो और जो जिनके अंदर तेज है, सुधर्म का तेज है, अपने अपने संस्कारों का तेज है, अपने ज्ञान का तेज है, वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कोई बहुत 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 मुश्किल बात नहीं है समझने की, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों में हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरी ये छोटी मोटी समझ ये बनी है कि युद्ध तो कई सालों से लड़े हैं हम लोग, सैकड़ों सालों से लड़े, शस्त्रों के युद्ध लड़े, किसी में हारे किसी में जीते, पूरी तरह तो कभी भी नहीं हारे, लगातार संघर्ष में ही रहे। लेकिन जब प्रोपेगेंडा की लड़ाई शुरू हुई, जब हमारे सोचने समझने लिखने पढ़ने के खिलाफ जब बात शुरू हुई, वहां पे शायद हम लोग चूक गए, या हमारा का जो सिस्टम था वो पहले ही ध्वस्त था, और उसके बाद हमारे ऊपर तो हमारे शिक्षा संस्थान, हमारे वैचारिक लोग, हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास, वो कई सौ सालों के आक्रमण के बाद जब अपने सबसे कमजोरी पर था, तब अंग्रेजों ने अपना थोपा, तब उन्होंने झूठा इतिहास पढ़ाना, झूठी समझ बनाना, अपना कॉन्टेक्स्ट, तो इतना, और असली नुकसान वहीं से होना शुरू हुआ। और उन अंग्रेजों की बनाई हुई समझ, अंग्रेजों के बनाए हुए इतिहास को ही, अंग्रेजों के बनाए हुए मॉडल को, उनके बनाए हुए एजुकेशन के तरीके को ही तथाकथित आजादी के बाद हमारे ऊपर थोप दिया गया, और भी ज्यादा जहरीले तरीके से थोप दिया गया। और अंग्रेजों के ऊपर जो कम्युनिस्ट सोच का जहर इस देश में नेहरू के शासनकाल में लगा, उसने मुझे लगता है कि सबसे बुरी तरह हम लोगों को खत्म किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेहरू जैसे लोगों ने कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया। हमारी मूवी को, हमारे लिटरेचर को, हमारे आर्ट को, उससे जुड़ी हुई सारे संस्थानों को, कम्युनिकेशन, संवाद, प्रोपेगेंडा के सारे माध्यम को कम्युनिस्टों के हाथ में सौंपना, ये मुझे लगता है मुगलों और अंग्रेजों से भी बड़ी मुसीबत, बड़ी आपदा भारत के ऊपर अगर आई है तो वो नेहरू के शासनकाल में आई है, कांग्रेस के शासनकाल में आई है। क्योंकि तब हमसे हमारे विचार छीन लिया गया, हमसे हमारा तेज छीन लिया गया, हमारे युवाओं के मन में जहर घोलने की एक प्रक्रिया को सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया। और वहीं से मुझे लगता है कि हम लोग कहीं कमजोर हुए। पर ऐसा तो नहीं है कि हम हार गए इस लड़ाई को, तभी से कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बोलना भी शुरू किया है। और आज जिस प्रकार से आप लोगों का ग्रुप बैठा है, या देश में अन्य जगहों पे युवाओं के ग्रुप हैं, या पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग तेजी से अपनी बातों को रखना शुरू कर चुका है, मुझे ये लगता है कि वो साजिश को भी, जैसे बाकी साजिशें खत्म हुई हैं, फेल हुई हैं, ये भी साजिश खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएगी। चिंता की बहुत ज्यादा बात नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि बिना लड़े तो नहीं बचने वाले, और ये वैचारिक लड़ाई है, कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा की लड़ाई है। इस लड़ाई में बिना लड़े तो नहीं बचने वाले, लेकिन लड़ेंगे तो कोई हमें हरा भी नहीं सकता, ये भी निश्चित है। जी जी, धन्यवाद आपका। ये मेरा बस एक छोटा सा जो उसमें प्रश्न जो था, बस कि एक हमारी चूक क्या है ऐसी जो जिस कारण से ये सब हमको झेलना पड़ गया इतना। हमने अपना, कोई हाँ, हमने अपने अपने नजरिए से अपने इतिहास को, अपने वर्तमान को देखना बंद कर दिया। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चूक है। हम अंग्रेजों के नजरियों से, या मुस्लिम शासकों के नजरिए से, या उसके बाद कम्युनिस्टों के नजरिए से, इस नजरिए से स्वयं को देख रहे हैं। और जब तक उनकी आंखों से देखेंगे तब तक हम हीन भावना में ही फंसे रहेंगे। जिस दिन अपनी आंखों से, अब तो सबसे बड़ा मुझे लगता है हमारे अंदर जो नुकसान हुआ है वो हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट से चीजों को देखना बंद होना, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप हमारे बीच हैं। अब अगला प्रश्न श्री अनूप शाही जी द्वारा है। आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते। सो एक्चुअली मेरा आपका टॉक सुना बहुत अच्छा लगा। आपने अपने टॉक में पूरा संस्कृति और धर्म पे मतलब बात किया, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे भी लगता है भारतवर्ष सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही महान है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड आपने बात किया टेक्स्ट बुक वगैरह हिस्ट्री को चेंज करने के बारे में। सो मेरा एक ओपिनियन है, मतलब मेरा 2 क्वेश्चन है, उसके आप मेरा एक ओपिनियन भी है। सो उसमें मुझे क्या लगता है, इतिहास चेंज करने के से ज्यादा आज को चेंज करना ज्यादा जरूरी है।
इतिहास से सीखते हुए, क्योंकि आज का दिन कल के लिए इतिहास होने वाला है, तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। सो ऑब्वियसली हमें आज को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, ये देखते हुए सिर्फ पास्ट का बात करें और आज को इग्नोर करें। आपने अपने टॉक में बात किया कि पहचान खो देना एंड अपने आप को हीन समझना। तो मेरा भी मानना है कि आप अपना पहचान खो देते हैं, अपने आप को हीन समझते हैं, तो आप अपना अस्तित्व खो देंगे और एक राष्ट्र के लिए ये सही नहीं है। ये तो मेरा इसके बेसिस पे एक सवाल है आपसे कि जब आप हर चीज का श्रेय एक व्यक्ति को देते हैं, तो क्या आप अपने आप को हीन नहीं समझते हैं? क्योंकि हम 2014 के पहले एक संस्था के लोग थे जो ऐसा ही करते थे, उनका हाल क्या हुआ है हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो टेंडेंसी हमारे अंदर भी आ गया है, हम भी गलत तरीके से कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि आप हर एक चीज का श्रेय एक व्यक्ति को दे रहे हैं, चाहे वो गलत करे सही करे, जो कि इस एक समाज के लिए मुझे लगता है कि सही नहीं है। सो एक क्वेश्चन है कि जब आप एक व्यक्ति को आप हर चीज का श्रेय दे रहे हैं, तो क्या अपने आप को हीन नहीं समझ रहे हैं? दूसरा चीज ये है कि एक समाज के लिए, तो एक समाज के तौर पे जब समाज के अनूप जी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, थोड़ा सा समय कम है, आप यदि शॉर्ट में अपना सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वही सवाल है पूछेंगे अनूप जी, आप भूमिका के अलावा ना बांध के सवाल, अगर सीधे सवाल करें तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आपके दो हो गए अभी। दूसरा सवाल ये है कि जब हम समाज के लोग दोहरे व्यवहार करते हैं, तो ये भी समाज के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है और हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा हम ऐसे कहीं पे जा नहीं रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अभी आपने बोला भूमिका नहीं बांधना है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक हमारे एक व्यक्ति ने नारा दिया था, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। अब वही चीजें वो फॉलो नहीं किए, और हम में अनूप जी माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ फिर। अनूप जी कर रहे हैं। थैंक जी कपिल जी, आप उत्तर दे सकते हैं। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि अभी तो हम उस मोड़ पर पहुंचे ही नहीं है जब हम एक ही व्यक्ति को सब चीजों का श्रेय देने लगे। एक राष्ट्र और समाज के तौर पर नायकों को नायक मानना, नायकों के पीछे चलना, राष्ट्रीय नायक किसी को बनाना, नायक कौन है, हमारा सेनापति कौन है, उसके पीछे समाज कैसे खड़े होते हैं, वो तो हमने शुरू ही नहीं किया। हमने तो बोलने से पहले टांग खींचना, कमजोर करना, तोड़ना, चार कमी निकालना, ये हमारे अंदर की प्रवृत्ति है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हमें सीखना हो शत्रुओं से, तो पहले यही सीखना होगा कि किस प्रकार से नायक के पीछे समाज को खड़ा होता है, किस प्रकार से नायकों को समय दिया जाता है और विश्वास किया जाता है राष्ट्र के नायकों के ऊपर। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुनते हुए मुझे यही लग रहा था कि क्या एक समाज के तौर पर, और नायक केवल एक नहीं होता, राजनीति का कोई नायक होगा, तो विज्ञान का कोई नायक होगा, तो सामाजिक का कोई और नायक होगा, तो शिक्षा का कोई और नायक होगा। लेकिन अपने समाज और संस्कृति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए काम करने वाले नायकों को पहचानना, उनको नायक को नायक का सम्मान देना और उसके पीछे खड़ा होना, उस पर विश्वास करना, खास तौर पे जब वो सबसे ज्यादा जटिल युद्ध में हो, तब तो जरूरी उसके साथ खड़ा होना, क्योंकि जब वो लगातार विजय हासिल कर रहे होंगे नायक, तब तो उसके पीछे दुनिया खड़ी है। लेकिन युद्ध के दौर पे अपने नायकों के ऊपर विश्वास रखते हुए समाज के तौर पे और धर्म और राष्ट्र के तौर पे खड़ा होना, ये मुझे लगता है कि अभी हमें सीखना बाकी है। और मैं आपके सवाल का मेरा उत्तर यही है कि अभी हमने शायद वो सीखा ही नहीं है, एक व्यक्ति या एक नायक के तौर पर, एक समाज के तौर पर किसी का साथ देना और खड़े होना। और पिछले कई 100 सालों से शायद हमने अपने नायकों को सबसे प्रखर युद्ध की भूमि में अकेला छोड़ा है बार बार, और उसी की कीमत बार बार एक देश और समाज के तौर पर हमने चुकाई भी है। तो शायद वो गलती दोबारा ना करें, उसको समझें और सीखें, यही समय है। ये मेरे को लगता है कि मेरा रिस्पॉन्स होगा। जी अगला प्रश्न गोविंद मौर्य जी द्वारा है, अभी अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके प्रश्न कर सकते हैं। गोविंद जी, आपका ऑडियो नहीं है। हाँ अभी ऑन।
गोविंद जी अच्छा, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। गोविंद जी और बाकी लोग जो अभी सवाल पूछने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपना प्रश्न जो है थोड़ा संक्षिप्त में रखें, क्योंकि समय जो है वो थोड़ा जी जी भाग रहा है। जी, मैं बहुत ही संक्षिप्त में रखूंगा जी। तो एक जो मेरा मुख्य प्रश्न है वो ये है कि आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक जो हम लोग को राइट देता है, हमने कभी उसका यूटिलाइज नहीं किया। अगर हम उसका उपयोग करके चाहें तो भारत के सारे मंदिर जो है सरकार के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं और स्वतंत्र गुरुकुल भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन पिछले इतने वर्षों में वो कार्य नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न भी यही है कि आपका उस विषय में क्या विचार है, क्या आप क्या सोचते हैं? और दूसरा यही रिक्वेस्ट है कि एक जन आंदोलन हो, चूंकि एक मैं उदाहरण बता देता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने नटराज मंदिर जो चेन्नई में है उसको इसी आधार पर मुक्त करवाया है कुछ वर्ष पहले, 2013 में शायद। तो उस आधार पर भारत के सभी मंदिर जो हैं मुक्त हो सकते हैं। तो उस विषय में आपके क्या विचार हैं, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है। और डेफिनेटली भारत के मंदिरों को, गुरुकुलों को और हिंदुओं को अपने अपने धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने, अपने शैक्षिक संस्थान चलाने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। और ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से भी हो सकता है और एक और चीज के माध्यम से हो सकता है। दो चीजों के माध्यम से हो सकता है। एक तो इस माध्यम से हो सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको समानता का अधिकार तो देते ही है, लेकिन हिंदू समाज को कहीं ना कहीं अन्य समाजों की तुलना में वो अधिकार इक्वालिटी का नहीं मिला, क्योंकि जब आप किसी भी एक को कोई विशेष अधिकार देते हो तो आप दूसरे को उससे नीचे कहीं सेकंड क्लास सिटीजनशिप दे रहे हो। तो इसके लिए जन आंदोलन, इसके लिए केवल एक लाइन, इक्वल राइट, गिव हिंदूज इक्वल राइट टू एनी अदर रिलीजन। अगर किसी और धर्म को अपना धार्मिक संस्थान चलाने की आजादी है तो हमें भी दे दो। अगर किसी और को अपना शैक्षिक संस्थान चलाने की आजादी है तो हमें भी दे दो। बेसिक संविधान की भावना, सबको समान अधिकार, उसका पालन इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए भी किया जाए, मेजॉरिटी के लिए भी किया जाए। मुझे लगता है अगर एक वो मांग और एक इस प्रकार का जन आंदोलन हमने किया तो चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो हमारे धर्म को प्रचार प्रसार करने की आजादी हो, चाहे वो प्रखरता के साथ अपने धर्म का पालन करने की बात हो, ये सारे अधिकार लगातार एक ही कड़ी में हमको मिलते चले जाएंगे। बात केवल इक्वालिटी की है, बात केवल समानता की है। हिंदुओं को समान अधिकार मिलने ही चाहिए। क्या ये बिना जन आंदोलन के हो सकता है? बिल्कुल बिना जन आंदोलन के नहीं हो सकता। जन आंदोलन करना ही पड़ेगा। सामाजिक दबाव, राष्ट्रीय दबाव, और हमारे ही संविधान में ताकत है, हमारे पास वोट की ताकत है। जिस प्रकार से इस देश के अन्य समाज वोट की ताकत का उपयोग अपने धर्म और समाज के हित के लिए करते हैं, अपने धर्म और समाज का हित को ध्यान में रखते हुए ही स्ट्रेटेजिक वोटिंग को करते हैं, मुझे लगता है वो वोट के अधिकार, अभी चैट में भी किसी ने लिखा हुआ था, वो वोटिंग के राइट को रणनीति के तौर पर धर्म और समाज और राष्ट्र के हित में इस्तेमाल करना, एक ग्रुप, एक समूह के तौर पर, ये कहीं ना कहीं हमको सीखना भी पड़ेगा और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न प्रतीश कुमार जी द्वारा है। आप भी अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, कपिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरा प्रश्न है मतलब कि हम लोग जिसको सो कॉल्ड हिंदू गवर्नमेंट बोलते हैं भाजपा को, मतलब काफी कुछ बंगाल में हुआ, हमने भी देखा और पूरा मीडिया में भी इस बात को फैलाया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जैसे लिबरलों ने उसको प्रोजेक्ट किया कि ये ऑलरेडी बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ वहाँ पे जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। और हम लोग ने काफी उम्मीद किया था कि बीजेपी सरकार जो है, केंद्र सरकार एक्शन लेगी। लेकिन पिछले दिल्ली में भी बहुत सारे दंगे हुए, अन्य राज्यों में भी बहुत सारे दंगा हुआ, और अभी तक हमने मतलब काफी कुछ केंद्र का सरकार से उम्मीद किया था, लेकिन हमने कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला केंद्र सरकार से कि मतलब उन्होंने कोई इफेक्टिव एक्शन लिया हो। केंद्र सरकार हमेशा प्रोटेक्टिव मोड में ही इस पे काम किया है, कोई भी डिफेंसिव मोड में इस पे काम नहीं किया है। तो क्या हम लोग को मतलब उम्मीद करना चाहिए कि मतलब अभी सरकार, मतलब केंद्र सरकार जो है आगे इस पे कुछ प्रभावी एक्शन ले सकती है इस टाइप के जो दंगे हो रहे हैं?
निश्चित तौर पे। और मैं अपने अपने अनुभव के आधार पे आपको ये बात कह सकता हूँ, और ये भी कह सकता हूँ कि ये देश इस वक्त जिन हाथों में है, उनकी समझ के ऊपर या उनके काम करने के तरीके के ऊपर हो सकता है कि वो आपको या हमें आज समझ ना आ रहा हो, लेकिन बाद में समझ में आता है, क्योंकि वो इतिहास को भी समझे हुए लोग हैं और वर्तमान में कितने दुश्मन चारों तरफ खड़े हैं उसको भी समझे हुए लोग हैं। दो छोटे उदाहरण आपको देता हूं मैं। पहला उदाहरण है कश्मीर में महबूबा मुफ्ती। तो जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनी, तब क्या लगा सब लोगों को, और किस प्रकार का विचार हुआ, और किस प्रकार का मन में भावनाएं आई, और उसके बाद अंत में उसकी परिणति कहां पर जाकर हुई, और किस प्रकार से 70 साल की जो बेड़ी थी और कश्मीर की जो गुलामी थी उसको किस प्रकार से खत्म किया गया, कश्मीर को भारत में किस प्रकार से मिलाया गया, और वो महबूबा मुफ्ती किस प्रकार से आज दोनों अब्दुल्ला और मुफ्ती किस प्रकार से बंद करके जेल में सिसक के रह गए, और कश्मीर में पत्थर तक नहीं चल पाया एक। तो लेकिन वो एक प्लान था, वो एक लंबी तो पहले दिन देखते हुए ये लग रहा था कि जैसे कितना बड़ा आघात हो गया विचारधारा पे या सोच पे या समाज पे, जब सरकार बन रही थी वहां पर पीडीपी के साथ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये विश्वास कि जो लोग कर रहे हैं वो करना जानते हैं और उनको लक्ष्य भी मालूम है, और बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने से पहले सोचने वाले नहीं है, झिझकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, लेकिन करेंगे उसको इस तरीके से कि वो पूरा हो, केवल होता हुआ दिखे, मतलब उछल कूद ज्यादा हो और परिणाम कम हो। मेरे को लगता है कि आज का भारत का वर्तमान नेतृत्व शायद परिणाम लाने वाला नेतृत्व है। दूसरा उदाहरण मैं दिल्ली के दंगों का दूंगा। दिल्ली के दंगों में चाहे वो प्रोफेसर हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पिंजरा तोड़ जैसे लड़कियों का समूह हो, चाहे वो उमर खालिद जैसे आतंकी हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, या इनके पीछे की पूरी फाइनेंसिंग हो, पूरी फंडिंग हो, आज सारी ध्वस्त है। आज लगभग सब जेल में है। आज उनके पास ताकत नहीं बची है कुछ भी करने की इस देश के खिलाफ। उनका एक एक चीज फांडा फोड़ के सामने आया हुआ है। किसी भी इस देश में पिछले 70 सालों में दंगों के खिलाफ इतनी निर्णायक कार्रवाई आज तक नहीं हुई किसी भी दंगे में, जितनी निर्णायक कार्रवाई दिल्ली के दंगों में हो रही है। और एक अपराधी जेल के अंदर डाला जा रहा है, सजा मिल रही है उसको, और आगे के लिए वो ना कर पाए, उनकी सारी फाइनेंसिंग, उनकी फंडिंग का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है। ये कोई चमत्कार ही है कि इस देश में कांग्रेस सरकार के जाने के बाद से देश के बड़े शहरों में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। कितना बड़ा कार्य उसके पीछे किया गया होगा, किस प्रकार से आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया होगा, उनके गली गली में बैठे हुए मॉड्यूल को। तो मेरे को ये लगता है ये 2-3 एग्जाम्पल ये बताने के लिए काफी हैं कि हमें हो सकता है पैनिक हो रहा हो, हमें हो सकता है चीजों को देख के लगता हो कि चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी हम चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व एकदम सही हाथों में है और उनको मालूम है किस वक्त क्या करना है। और बंगाल में जो हो रहा है उसका जितना पीड़ा या दर्द आपको और मेरे को हो रहा होगा, उससे तो कई 1000 गुना ज्यादा पीड़ा और दर्द इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हो रहा होगा। इतना तो उनकी भावनाओं को आप और हम दोनों समझते हैं, सब लोग समझते हैं। तो इस पीड़ा को कैसे निपटाना है, इस पीड़ा को जड़ से कैसे खत्म करना है, बंगाल को कश्मीर बनने से कैसे रोकना है, मुझे लगता है शायद हमारे मन में तो चिंता होगी, लेकिन वो तो उसका चिंतन भी कर रहे होंगे और समाधान भी रख रहे होंगे। जी बाकी मैं जो भी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे ये कहूंगा कि पॉलिटिकल क्वेश्चन रखें, सांस्कृतिक और सामाजिक क्वेश्चन रखें। मैं आप लोग पीड़ा समझ सकता हूँ जो विगत घटनाओं पर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन आज का विषय जो है वह सांस्कृतिक और सामाजिक ज्यादा है, तो उससे ही संदर्भित प्रश्न पूछिए। आगे हर्षद गांधी जी हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हर्षद जी। कपिल जी, मैं आपका आभारी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अब तक हिस्ट्री क्यों नहीं बदली गई, जिसे पिछले 6-7 सालों में जो सरकार हमारी बनी है जो सत्य हिस्ट्री को बताना चाहती है, तो उन्होंने हिस्ट्री को बदलने के लिए एनसीईआरटी हो या और कोई हो, तो क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतिहास के बारे में आप कह रहे हैं, पाठ्यक्रम के बारे में? हाँ जी, इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में। ये बहुत ज्यादा स्थिति बदली हुई मुझे भी नहीं दिखती है। कुछ इतिहास कहीं कहीं बदला भी गया है। जावड़ेकर जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें कुछ पन्ने इतिहास के बदले हैं, धीरे धीरे बदलाव करने की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ मेरे को भी समझ में आया था। पर ये बात मैं मानता हूँ कि हमारी तो अपेक्षाएं इससे ज्यादा की हैं, आपकी और हमारी, ये निश्चित है।
सुनिश्चित है, हमारी अपेक्षा इससे ज्यादा की है। परसों जो एनसीईआरटी ने ट्वीट किया था, मैंने उसके खिलाफ ट्वीट भी किया और बोला भी खुलकर कि वो भद्दी कविता को बचाने की एक बिल्कुल निर्लज्ज कोशिश एनसीईआरटी के माध्यम से हुई थी। और डेफिनेटली इस देश के शिक्षा और इतिहास में बड़ा बदलाव अपेक्षा भी है और लगता भी है कि किया ही जाएगा, निश्चित है। और ये नहीं करेंगे तो करेगा कौन? और डेफिनेटली समाज का, राष्ट्र का, इस देश के शिक्षित युवाओं का हमारा दबाव ये लगातार बने रहना चाहिए। अगला प्रश्न पार्थ पाठक जी के द्वारा है, आप भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद कितनी देर चलाएंगे अभिषेक जी? बस 15 मिनट और। 15 से 20 मिनट जी। नमस्ते जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जी। नहीं आ रही है पार्थ जी, अभी भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। चैट बॉक्स का यूज करें। नहीं, आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप हेडफोन डिस्कनेक्ट करके पूछें तो ज्यादा उचित रहेगा। चैट बॉक्स का यूज कर लीजिए। तब तक हम अगला प्रश्न ले लेते हैं बाजी, उसके बाद आप कराते हैं। आ रही है? हाँ पार्थ, हाँ अभी आ रही है, ये हटा के बोलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। पूछिए पार्थ। नहीं, बोलिए पार्थ जी, आपकी आवाज आ रही है। वो नहीं सुन पा रहे हैं त्रिपाठी जी, अगला क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट। अच्छा, मनीष जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार कपिल जी, मैं मनीष कुमार हूँ, डॉक्टर मनीष कुमार। वैसे तो मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, बेसिकली हिमाचल प्रदेश का। तो मेरा प्रश्न, पता नहीं शायद आप इसको कहीं पॉलिटिकली ना समझे वैसे मेरा प्रश्न इसलिए था कि जैसे कि आपने सुने होगा, जैसे बंगाल में हिंदुओं का दमन होता है या पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन होता है, जैसे कि मुस्लिम लोगों का अगर कहीं दमन होता है तो मुस्लिम कंट्रीज बहुत स्ट्रांगली उसको उठाती हैं मुद्दे को। क्या आपको लगता है हमारी भारत सरकार भी उतना स्ट्रांगली उठाती है या उठाने का प्रयत्न करती है, पर कहीं दिखता नहीं है उतना ज्यादा? आपने देखा ही होगा बंगाल में क्या स्थिति है। भाई जी, क्या हम हिंदू कंट्री हैं? हम, हाँ, मैं मानता हूँ कि हम ऑफिशियली हिंदू कंट्री तो नहीं है। नहीं, हम अनऑफिशियली भी नहीं है, हम अनऑफिशियली भी नहीं है, हम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तो जो नहीं है उससे वैसी अपेक्षा ही क्या करें हम लोग? अगर कभी ऐसा सिस्टम बने जी, हमें तो अभी हिंदुओं को इस देश में बराबर का अधिकार मिल जाए देश के अंदर, इसी के लिए मांग करने की बात हो रही है। अभी तो ये मांग करने की बात हो रही है कि हमें हमारे लिए बराबर का अधिकार मिल पाएगा क्या इस देश में? धार्मिक अधिकार बराबर मिल पाएंगे, धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार बराबर मिल पाएगा? ये तो बहुत ही दूर की बात है कि, लेकिन हाँ, इस देश के इतिहास में पहली बार हिंदू और हिंदू से जुड़े हुए धर्म के लोगों को कम से कम शरण दिया जाए, ऐसा एक कानून सीएए बनाया। पहली बार भारत की संसद ने धर्म का नाम लेकर एक निर्णय लिया। तो ये पहला कदम तो बोल सकते हैं, पहला छोटा कदम, कि भारत की सरकार ये बोल रही है कि दुनिया में कहीं भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध होंगे तो उनको शरण देना या प्रोटेक्शन करने के लिए भारत की सरकार कहीं कोई नैतिक जिम्मेदारी लेती है, चाहे वो 3 देशों का नाम लेके लिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। वो एक छोटा पहला कदम तो उठाया है भारत ने, उतना तो समझ में आता है। और वो भी बहुत बड़ा कदम है। जिस प्रकार का हमारा संविधान है, जिस प्रकार से 70 साल से ये देश चला है, उसमें भारत की संसद के अंदर भारत का गृह मंत्री भारत के बाहर के अन्य देशों में धर्म का नाम लेकर कि वहां पर प्रताड़ना होगी तो भारत शरण देगा, ऐसा एक कानून संसद के द्वारा पास करके बनाया जाए, ऐसा तो हो चुका। तो उसको एक पहला कदम तो बोल सकते हैं उस दिशा में जिस दिशा में आप कह रहे हैं। लेकिन क्या भारत की सरकार हिंदू या हिंदू से जुड़े समाजों के हितों के लिए प्रखरता के साथ पूरी दुनिया में भारत को उसका केंद्र बिंदु बनाएगी, उसकी नैतिक और राजनैतिक और सैन्य जिम्मेदारी लेगी रक्षा की, वैसा कुछ होगा? वो दूर की कौड़ी है। अभी तो बहुत पहले दूसरे तीसरे चौथे कदम लिए जाने बाकी हैं। होना चाहिए, सपना जरूर देखना चाहिए, लेकिन समय लगेगा और आपको हमको सबको उसके लिए काम करना होगा। एक कदम लिया गया है,
अभी तो उसको ही अप्रिशिएट कर पाए हम लोग मिलकर एक समाज के तौर पे, और समझ पाए कि वो प्रतीकात्मक तौर पे कितना बड़ा कदम है। यही अभी मेरे को लगता है कि एक पहली शुरुआत होगी हम लोगों की। अगला प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। अगला प्रश्न गोविंद मिश्र जी द्वारा है, तो आप भी अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछिए। गोविंद जी। गोविंद जी आपने अनम्यूट नहीं किए, गोविंद जी अनम्यूट करके बात कीजिए। सॉरी। हेलो कपिल सर, नमस्ते। जी भाई। सर, आप इस समय आधुनिक भारत में एक सक्रिय राजनेता और कुशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरा एक्चुअली आज के इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड एक प्रश्न है कि हमारी इस भारतीय संस्कृति से रिलेटेड दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गाय माता और एक संस्कृत भाषा। जिस संस्कृत भाषा को हम लोग ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, तो हम लोग आज तक उसको अपनी राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं घोषित कर सके, हमारी कहाँ असफलताएं रह गई हैं उसमें। और गौ हत्या बंद करने के लिए आज तक एक राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं आ सका इस देश में, या गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो सकी। ये मुझे जहां तक लगता है ये दो चीजें हमारी संस्कृति से एकदम प्रारंभ से लगी है। एक न्यू जिसको हम बोल सकते हैं अपनी संस्कृति का, गाय, हमारी गाय माता और हमारी संस्कृत भाषा, जहाँ पे संस्कृत भाषा तो ऑलमोस्ट अभी डिमिनिश है, दिखाई नहीं देती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय भाषा बनाती है, और गौ कानून क्यों नहीं आ पा रहा है। ओके सर, थैंक यू। नहीं, भावनात्मक तौर पे बहुत अच्छा आपका सवाल है गोविंद भाई कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन गौ हत्या के लिए तो कानून बने हैं, देश की अलग अलग राज्य सरकारों ने भी बनाया हुआ है, केंद्र की भी अपनी गाइडलाइन बनी हुई है, और वो बंद नहीं हुई है। उसके पीछे बहुत सारे अन्य कारण हैं। हमारा किस प्रकार के लोग इस देश में एक बड़ी संख्या में हैं, किस प्रकार की विचारधाराएं इस देश में जगह जगह हैं। कई लोग तो उसको सेलिब्रेट करते हैं हिंदुओं का अपमान करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये पुस्तक रखी है, गंभीरता से मेरे को लगता है इस विषय को समझना चाहिए। ये पुस्तक रखी है ब्लीडिंग इंडिया, ये विनय कुमार सिंह की है। इसमें नक्सल मूवमेंट और कम्युनिस्ट मूवमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, और नक्सल मूवमेंट और कम्युनिस्ट मूवमेंट में खास तौर पे ये बात कही गई रिटर्न तौर पर कि इस देश में गो हत्या को एक उत्सव बनाओ, गो हत्या को सेलिब्रेट करो, गो हत्या को एक महान कार्य बताओ, जिससे कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और धर्म का काम करने वाले लोगों का मनोबल भी टूटे, उनका विश्वास भी टूटे, और उनकी आत्मिक शक्ति कमजोर हो। और इस देश में हमने देखा कांग्रेस जैसी सरकार के लोगों ने केरल में बीच सड़क में अभी 2 साल पहले गाय काटी और उसकी फोटो प्रॉपर मीडिया में चलाई। तो हम कोई बहुत साधारण स्थिति में नहीं है, हम एक भयानक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कानून कई सरकारों ने बनाए हैं, केंद्र ने भी गाइडलाइन बनाई है, पर क्या वो कानून से रुक जाएगा, या कि और भी बहुत सारे कदम एक समाज और राष्ट्र के तौर पर, खासकर नागरिकों के तौर पर, वो हम लोगों को लेने होंगे। ये हमें समझना है। और किस प्रकार के हमारे दुश्मन है, ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। प्लान करके गौ हत्या को प्लान करके और उसको एक उत्सव बनाना, उसको एक शौर्य का कार्य बनाना, जिससे कि हिंदू समाज में पतन हो, उनके मन में उनका विश्वास क्षीण हो अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति, और हमारे प्रतीकों को कमजोर किया जाए, उस दिशा में हमारे दुश्मन काम कर रहे हैं। तो कानून उसका समाधान, कानून एक कदम केवल हो सकता है, समाधान तो समाज से ही निकलेगा, राष्ट्र के तौर पे निकलेगा, नागरिकों के तौर पे निकलेगा। बहुत सारी संस्थाएं, गौरक्षक संस्थाएं, युवा अपने प्राणों को दांव पे लगा के इस दिशा में काम कर रहे हैं, और कई जगह पे इसको रोकने में कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है ये, बिल्कुल। और संस्कृत भाषा को भी, मेरे को भी लगता है, कोई भी भाषा आप थोप नहीं सकते समाज के ऊपर। संस्कृत धीरे धीरे दोबारा से लोग सीखने लगे हैं, लेकिन भाषा आती है जब उससे इनकम आती है, उससे एम्प्लॉयमेंट आता है, उससे रोजगार आता है, जब उससे कोई ना कोई स्किल सेट आता है। तो संस्कृत भाषा को वहां तक पहुंचाने के लिए संस्कृत के विद्वानों को भी काम करना पड़ेगा। संस्कृत में किस प्रकार से संवाद हो, संस्कृत में किस प्रकार से शिक्षा हो, संस्कृत में किस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं कुछ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जाएं। आज आप और हम सब ने अंग्रेजी सीखी क्योंकि वो उस भाषा से आगे बढ़ने का रास्ता खुल रहा था। कई लोग अब हिंदी सीखने लगे हैं क्योंकि हिंदी से आगे बढ़ने का रास्ता खुल रहा है। बॉलीवुड या उसके माध्यम से हिंदी जगह जगह पहुंची है। तो भाषाएं सरकारों से नहीं चलती, भाषाएं तो समाज से चलती हैं। जैसे संस्कृत के गीत
लोगों को अच्छे लगने लग जाएंगे, जिस दिन संस्कृत बोलने में मजा आने लग जाएगा, जिस दिन संस्कृत के डायलॉग हिट होने लग जाएंगे, जिस दिन संस्कृत पढ़ने या बोलने के कारण नौकरी मिलने लग जाएगी, उस दिन संस्कृत बिना किसी के चाहे भी हमारी भाषा बन जाएगी। लेकिन जैसे कि आज से कुछ साल पहले उर्दू और फारसी थोपने की कोशिश मुगलों ने करी, उनके जाति खत्म हो गई। एक समय तो वो राजभाषा बन गई थी, सारे काम, सारी कचहरी, कोर्ट सब उनकी जुबान पे चलते थे, उनकी भाषा में चलते थे, तो खत्म हो गई, क्योंकि जब उसमें चलना बंद हो गया तो खत्म हो गई। तो एक प्रक्रिया होती है। संस्कृत ने अपने सबसे लोवेस्ट स्तर तक भी समाज के तो स्वीकार करने के स्तर पर सबसे कमजोर स्तर पर पहुंचने के बाद दोबारा खड़ा होना शुरू किया है। इस देश में अब दोबारा लोग संस्कृत मंत्र, संस्कृत सीख रहे हैं। जैसे मैं अपनी बिटिया का बताऊं तो मेरी बिटिया अष्टाध्यायी याद कर चुकी है, संस्कृत ग्रामर सीख रही है। तो वो मैंने नहीं सीखा था उस उम्र में, लेकिन अब ऐसे ऐसे गुरुकुल ऑनलाइन चलने लगे हैं जो सिखा रहे हैं बच्चों को, और पढ़ाई के साथ साथ भी। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन एक भाषा की कमजोर होने और दोबारा खड़े होने की एक लंबी साइकिल होती है। संस्कृत दोबारा खड़ी होनी ही है, क्योंकि स्वाभाविक भाषा है, देव भाषा है, सबसे मधुर भाषा है, ज्ञान की भंडार है उस भाषा के अंदर। तो दोबारा तो होना ही है, आपके जैसे लोग उसको दोबारा प्रखरता से खड़े करेंगे। पर लंबी प्रक्रिया है, ये दोनों लंबी प्रक्रियाएं हैं। और हमारे समाज के जैसे जैसे भारतीय संस्कृति और समाज दोबारा खड़ा होगा, जागृत होगा, उदय होगा, शक्तिमान होगा, वैसे वैसे ये दोनों चीजें भी अपने आप सामने आएंगी। बहुत आभार इस सवाल के लिए। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। त्रिपाठी जी, जी मैं त्रिपाठी जी, अब शायद समय नहीं है उतना, तो हम सवाल ले पाने में जो है वो सक्षम नहीं है। अब हमें केवल एक सवाल लेकर के कि हमारा सत्य क्या है और सत्य कहाँ से पाया जाए या खोजें, इस बारे में, इस विषय में समझाएं। नहीं, दो तरह के सवाल है। एक तो सवाल होता है सत्य क्या है, वो तो साधु संत महात्मा ज्ञानी विज्ञानी लोग खोज ही रहे हैं बरसों से, तो उस प्रकार का, या हमारे इतिहास के संदर्भ में है। अगर इतिहास के संदर्भ में सत्य की बात है तो मैं दोबारा से, या हमारी घटनाओं को जानने समझने के सत्य की बात है, झूठे इतिहास के खिलाफ बोलने की बात है, उसमें सत्य की बात हो रही है। तो मुझे लगता है दोबारा से मैं ये बात रिपीट करना चाहूंगा जो कि एक बार मैंने बोली थी। दो तरह का सत्य होता है। एक सत्य होता है उस वक्त क्या घटनाएं हुई, उसके तथ्य क्या हैं। जैसे कि राम मंदिर के नीचे जो बाबरी मस्जिद बनाई और नीचे खोदा तो मंदिर निकला, वो तथ्य है। जब भी खोदा जाएगा तो निकलेगा, 1000 साल बाद खोदते तो 1000 साल बाद निकलता, वो सत्य है। उस प्रकार के सत्य जो तथ्यों पे आधारित होते हैं, जो फैक्ट पे आधारित होते हैं, वो सत्य तो सामने लाना बहुत ही आसान है। केवल साहस होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और लगातार का प्रयास होना चाहिए, वो सामने आएगा ही आएगा। अगर बाबर इस देश से भाग गया, अगर सिकंदर यहाँ पे आके मारा गया, अगर औरंगजेब एक लुटेरा बलात्कारी था, तो वो तथ्य थोड़ी सी भी घटनाओं को खोजेंगे तो सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन सत्य केवल उतना ही नहीं होता जो तथ्यों में होता है। सत्य होता है उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस कॉन्टेक्स्ट से, किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब अंग्रेज आकर यहाँ पे राज करें और प्रस्तुत ये हो कि अंग्रेजों ने ही भारत को मॉडर्न बना दिया, अंग्रेजों ने ही भारत को एक कर दिया, अंग्रेज नहीं आते तो भारत, तो ये प्रस्तुत करने का तरीका है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कॉन्टेक्स्ट है। ये अंग्रेजों का सत्य हो सकता है, ये हमारा सत्य नहीं है। या भारत आपस में बहुत ज्यादा बटे हुए लोग हैं, ये तो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, ये हमारे दुश्मन का सत्य हो सकता है, ये हमारा सत्य नहीं है। तो अपने कॉन्टेक्स्ट को समझना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, हम इतिहास को और वर्तमान को और भविष्य को जहां हम खड़े हैं स्व केंद्रित होकर उस दिशा से अगर हम देखेंगे, वो हमारा सत्य होगा, वो किसी और के सत्य से डेफिनेटली अलग होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि समय आ गया है जब भारतीय समाज, हिंदू समाज अपने कॉन्टेक्स्ट से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को केंद्र में रखते हुए इतिहास का भी मनन करे और भविष्य का भी चिंतन करे। बिल्कुल कपिल जी, यही जवाब चाहिए था और यही प्रश्न भी था जो आपने जवाब दिया है। एक बस ये अंतिम सवाल आपसे करेंगे चैट से, उसके बाद फिर हम समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक आलोक तिवारी जी के पास से सवाल है। वो कहते हैं कि सर, हमें हिंदू को ज्यूइश लोगों से क्या सीख लेना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है ज्यूइश और हिंदू सेम प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, इसके बाद भी गवर्नमेंट ओपनली सपोर्ट क्यों करती है पैलेस्टीन को यूएनएससी में। ज्यूइश से हमें कोई सबक लेने की जरूरत नहीं है, वो हमसे सबक लेंगे। वो तो बहुत छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो बहुत लंबी लड़ाई 2000 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, लड़े भी हैं, जीते भी हैं, देश के अंदर लड़े हैं और बाहर लड़े हैं, वैचारिक स्तर पर लड़े हैं और इतिहास के उस पर लड़े हैं। एक चीज अगर हमें सीखनी चाहिए तो वो ये है, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को कभी ना भुलाना।
अपने आने वाली पीढ़ियों को बार बार याद दिलाना क्या अत्याचार हुए, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। ये मुझे लगता है आवश्यक है सीखना। वहां पर अगर एक बार कुछ हुआ तो उसको ऐसा कर दिया गया कि उसके खिलाफ, होलोकास्ट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता दुनिया में। राजनेता अगर बोलता है तो उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। इजराइल में नहीं, दुनिया के किसी भी देश में बोलेगा तो जिन जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करके, जिन नामों का इस्तेमाल करके उनको मारा गया, वो फिर पूरी दुनिया की नजरों में खलनायक बन गए हमेशा के लिए। ये हमारे यहाँ इसका उल्टा है। हमारे यहाँ जिन लोगों ने उस होलोकास्ट से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा नरसंहार किए, उन्हें नायक बना के प्रस्तुत किया जाता है, उनके नाम पे सड़कें बनाई जाती है, उनको हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, उनके नाम पे बड़े बड़े स्टार अपने बेटों के नाम रखने लग जाते हैं। तो ये हमें सीखना होगा, इसको अस्वीकार करना, पूरी तरह से कठोरता के साथ अस्वीकार करना, खलनायकों को खलनायक बताना, ये मुझे उनसे सीखना चाहिए। उसके अलावा साहस में, वीरता में, विजय में, संघर्ष में शायद उन्हें ही हमसे कुछ सीखना पड़े। हमारा इतिहास शौर्य का, पराक्रम का, विजय का गौरवशाली इतिहास है। बिल्कुल, धन्यवाद कपिल जी। बहुत सारे प्रश्न हैं पर हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अभिषेक जी, आप आगे बढ़िए। जी, अभी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। और संचालक होने का जो लाभ मैं अपने ऊपर लेना चाहूंगा, एक दो पंक्तियां कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। तो हमारे अंदर जो चेतना होनी चाहिए, राष्ट्र जागरण के प्रति हमारे मन में जो भाव होने चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे मन में संकोच नहीं रहना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के अपने समूह की ओर से। और अब मैं निवेदन करता हूं अमितेश त्रिपाठी जी से कि वह इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान की ओर बढ़ते हुए उपसंहार और धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। धन्यवाद त्रिपाठी जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। हाँ, आज के कार्यक्रम के अंतिम सोपान, उपसंहार और धन्यवाद प्रस्ताव के साथ मैं अमितेश त्रिपाठी आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम सभी ने आज के विषय भारतीय संस्कृति के समक्ष चुनौतियां एवं उसके समाधान हेतु राष्ट्र जागरण में शिक्षित युवाओं की भूमिका पर हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय कपिल मिश्रा जी द्वारा एक साथ गर्भित उद्बोधन सुने। आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर उठाया, जैसा कि राष्ट्र का स्वरूप कैसा होता है, भौगोलिक और जो है वैचारिक, और आपने ये भी बहुत उत्कृष्ट विचार रखा कि भारत का भौगोलिक स्वरूप बदलने में समय लग सकता है, लेकिन वैचारिक स्वरूप को कोई नहीं रोक सकता। आज आप ये भी चुनौती भी आपने बताया कि आज के युवाओं में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हीन भावना है, और उस हीन भावना को निकालने से ही राष्ट्र का जागरण हो सकता है। आपने ये भी बहुत मतलब उत्कृष्ट तरीके से बताया कि हमें अपनी संस्कृति पर प्रश्न करने वाले लोगों को उत्तर देना है, चुप नहीं रहना है, उनको हम जो है आगे बढ़ के उनको खंडित करना है और हमेशा उनके सामने प्रश्न का उत्तर देना है। आपने ये भी बताया कि हर सनातनी को एक लेना है। एक विवेक जी के प्रश्न का उत्तर देते समय आपने बोला कि मेडल है, तो हम लोग भी कहते हैं, IITB फॉर भारत के लोग भी कहते हैं कि हमारे सीने में भी कई मेडल लगे हैं जो अभी तक हमको मालूम नहीं था, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये रियलाइज कराने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह उद्बोधन हम सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और अतीव आनंद देने वाला है।